Hello viewers, hello my dear friends, welcome to my channel Learning English with NK. So today we will be talking about a conversation at post office. Sometimes you go to the post office, you have to send some package, you have to send some letter, you have to do registry, or you have to send some registered letter. How will you go and ask there? What sentences you will be speaking there? What sentences you should prepare to ask the person sitting in the post office? Because you don't know what to do, where to do, how much it cost, where you can get the stamps and all these things. So how will you ask all these questions of yours in the post office from the person sitting on the or clerks working in the post office? So this is how to start conversation in the post office. So common phrases used at the post office by the customer means it can be I, it can be you. जो भी जा रहा है, जिसको कोई चीज भेजनी है, कुछ लेना है पोस्ट ऑफिस से, how he will talk in English. So conversation in English in the post office. Today we will be talking about this subject. So let us start the video. Suppose you have to send a package somewhere. You have got a packet to send something to your relations. You will go to the post office and you will say, I need to send this packet to Delhi. So please tell me what should I do, where I have to deposit this packet. So you will get the answer from the person on the second counter, on the third counter, or you will say, I need to send this package to Delhi. Your question is this. And you will be answered by the person sitting in the post office. He will tell you, you go to this counter or that counter, then you reach that counter. Then you will ask there, can you tell me how much will it cost? Because you have to send the package, you have to spend some money for sending it to Delhi. So you don't know how much you have to pay. So how will you ask? You can ask, can you tell me how much will it cost? कितना पैसा इसमें लगेगा, क्या आप बता सकते हैं? तो अगर the person will tell you either 20 rupees or 30 rupees, but you have to buy stamps for that. Stamps लगती हैं वहाँ पे. तो थर्ड आपका अगला क्वेश्चन क्या होगा कन्वर्सेशन में? डू यू हैव एनी स्टैम्प्स एनवेलप्स अवेलेबल? उस पैकेट को पोस्ट ऑफिस वाले बहुत सेफ्टी के लिए एक अपने और पैकेट में डाल देते हैं. अगर आप कोई चीज भेजना चाहते हैं तो आप यू हैव टू आस्क देम वेयर आई कैन गेट द स्टैम्प्स, और डू यू हैव सम स्टैम्प्स और एनवेलप्स ऑल्सो अवेलेबल इन द पोस्ट ऑफिस. द पर्सन विल टेल यू, go to the stamp counter, buy stamps for 50 rupees, 60 rupees, जितना भी आपका खर्च होना है वो बताएंगे आपको. बट हाउ यू विल स्पीक, आई एम गोइंग टू टेल टुडे अबाउट दैट थिंग ओनली. यू विल आस्क, डू यू हैव एनी स्टैम्प्स और एनवेलप्स अवेलेबल. फिर उसके बाद आप क्या कहेंगे? आपने स्टैम्प्स लगा दी, पैकेट बना के दे दिया, बट व्हाट विल यू डू आफ्टर दैट? कैन आई गेट ट्रैकिंग नंबर ऑफ द पैकेज? अब आपने भेज दिया अपना, you have given the package to the post office people, and you have affixed the stamps also on that. After that, your question will be, can I get tracking number of the package? Now you have to track it. कहाँ पे आपका पैकेट पहुंचा है, कब मिलेगा जिसको आपने भेजा एड्रेसी को. तो you can get the tracking number. एक ट्रैकिंग नंबर मिलता है जब आप सामान भेजते हैं, तो उस नंबर को आप ले सकते हैं, उससे आप ट्रैक कर सकते हैं कि आपका सामान कहाँ पहुंचा है. नाइस. फिर आप कहेंगे, कैन आई ऐड इंश्योरेंस टू दिस पैकेज? कई बार यू आर अफ्रेड दैट इट शुड नॉट बी लॉस्ट इन द वे, रास्ते में खो ना जाए, और इट शुड नॉट गेट डैमेज्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस. जा रहा है इधर उधर तो कहीं डैमेज ना हो जाए, तो आपके दिमाग में आता है कि इसका इंश्योरेंस करा दें, अगर कुछ हो जाता है तो यू विल गेट द मनी बैक. तो देन हाउ यू विल आस्क, कैन आई ऐड इंश्योरेंस टू दिस पैकेज? क्या मैं इसके लिए इंश्योरेंस भी ऐड कर सकता हूँ? और पैसे देंगे, इंश्योरेंस हो जाएगी आपकी. देन उसके बाद आपने ये सब ले लिया, सब दे दिया, वो भी पैकेट भी दे दिया, आपने अभी रसीद तो ली नहीं. रिसीट
रिसीट के लिए आप क्या कहेंगे? कैन आई गेट द रिसीट फॉर दिस ट्रांजेक्शन? आई हैव सेंड दिस पैकेट, आई हैव गिवन यू द पैकेट, आई हैव एडेड द इंश्योरेंस ऑल्सो, नाउ कैन आई गेट द रिसीट? आई कुडंट गेट द रिसीट येट, अभी तक मुझे रसीद नहीं मिली. कैन आई गेट द रिसीट ऑफ दिस पैकेज? तो फॉर दिस ट्रांजेक्शन मैंने जो दिया, पैसा दिया है, उसके लिए क्या मुझे रसीद मिल जाएगी? बिल्कुल. लेकिन आप पूछेंगे कैसे? कैन आई गेट द रिसीट फॉर दिस ट्रांजेक्शन? You should learn all these sentences, how to talk in English in the post office, how to converse in English in the post office. Those sentences I am telling you only. Someday I will again tell you the complete conversation between you and the person sitting in there. Today I am only telling you the sentences which you can ask in the post office. Then what is the expected delivery time of this? अब सब कुछ आपने कर लिया, फिर आप ये भी जानना चाहते हैं कि आपका पैकेट कब पहुंचेगा जिसको आपने भेजा है. व्हाट इज द एक्सपेक्टेड डेट फॉर द डिलीवरी? कब तक पहुंच जाएगा? कैसे पूछेंगे उसको? हिंदी में तो नहीं पूछना, इंग्लिश कन्वर्सेशन सीख रहे हैं हम. तो आप कहेंगे व्हाट इज द एक्सपेक्टेड डिलीवरी टाइम फॉर दिस. तो डिलीवरी टाइम आपने पूछ लिया, वो आपको पता लग गया. फिर आप कहेंगे आई नीड टू सेंड एक्सप्रेस. अगर उन्होंने कहा भाई इट विल टेक 10 days, इट विल टेक 20 days, 15 days, तो आपको लगेगा कि तो बहुत लेट हो जाएगा. तो फिर आप क्या कहेंगे? आई नीड टू सेंड एक्सप्रेस, हाउ कैन आई? मैं इसको जल्दी भेजना चाहता हूँ, एक्सप्रेस वे से भेजना चाहता हूँ, हाउ कैन आई? ये भी आप पूछ सकते हैं. आपको जल्दी भेजना है तो एक्सप्रेस डिलीवरी करवा सकते हैं. तो वो आप कैसे पूछेंगे? I need to send express. How can I? फिर आप कहेंगे कैन आई गेट रिफंड इन केस ऑफ डैमेज. अभी भी आपके स्टिल यू हैव ए क्वेश्चन इन योर माइंड टू आस्क कि इफ इट विल गेट डैमेज और इट विल लॉस्ट और इट विल देयर विल बी समथिंग रॉन्ग विद द पैकेज. तो व्हाट इज योर क्वेश्चन? कैन आई गेट रिफंड इन केस ऑफ डैमेज? अगर ये मेरा पैकेट डैमेज हो जाता है तो क्या मुझे इसका रिफंड मिल जाएगा? तो क्वेश्चन बोलेंगे कैसे? कैन आई गेट रिफंड इन केस ऑफ डैमेज. क्योंकि हम कॉमन फ्रेजेस जो यूज कर रहे हैं, छोटे छोटे सेंटेंसेस जो यूज करते हैं, वो हम आज सीख रहे हैं. पोस्ट ऑफिस में आपको क्या क्या पूछना पड़ता है. तो प्लीज गो थ्रू ऑल दिस सेंटेंसेस, लर्न हाउ टू कन्वर्स, हाउ टू डू कन्वर्सेशन इन द पोस्ट ऑफिस. इफ यू हैव सम वर्क देयर, यू हैव टू सेंड द लेटर और पैकेज और एनीथिंग एल्स. देन द नेक्स्ट थिंग, फिर आपके दिमाग में क्या आता है? हाउ कैन आई पे इन कैश और बाय क्रेडिट कार्ड. अब आपको फिर उसका पैसा देना है कि कितना पैसा खर्च होगा भेजने के लिए. तो आप पूछ सकते हैं कैन आई पे थ्रू क्रेडिट थ्रू कार्ड और इन कैश. क्या मैं कार्ड से पेमेंट कर सकता हूँ या कैश ही देना है मुझे? तो जैसा वो कहेंगे यू कैन डू दैट. बट योर क्वेश्चन शुड बी हाउ कैन आई पे इन कैश और बाय क्रेडिट कार्ड. नेक्स्ट आ जाता है कैन यू हेल्प मी. अब कोई फॉर्म एक भरना पड़ता है, आप इंश्योरेंस करवा रहे हैं तो उसके लिए एक फॉर्म भरना पड़ेगा. तो आपको क्या बोलना है वहां पे? और या आप कोई और काम कर रहे हैं, अपनी SIP करवा रहे हैं या अपने लिए कोई और ELSS में कई स्कीम्स हैं पोस्ट ऑफिस की, उनके लिए आप पैसा जमा कर रहे हैं, तो एक फॉर्म भरना पड़ता है उन सब कामों के लिए. उसके लिए आप क्या बोलेंगे? कैन यू हेल्प मी टू फिल दिस फॉर्म. आपको भरना नहीं आ रहा है तो आप उनकी मदद लेना चाह रहे हैं, तो योर लैंग्वेज विल बी कैन यू हेल्प मी टू फिल दिस फॉर्म. क्या इस फॉर्म को भरने में आप मेरी मदद करेंगे? बिल्कुल करेंगे. आप लोग भी करिए एक दूसरे की, और एक दूसरे से मदद मांग भी सकते हैं. देन कैन यू टेल मी इफ माई पैकेज हैज बिन डिलीवर्ड. अब थोड़े दिन हो गए आपको, आपने देखा, आप ट्रैक नहीं कर पाए, आपके मोबाइल ने या कंप्यूटर ने काम नहीं किया, तो आप फिर जाते हैं पोस्ट ऑफिस, क्योंकि जिसको आपने पैकेट भेजा था वो नहीं मिला अभी. तो आप वहां जाके कंफर्म कर सकते हैं. क्या आप कैसे पूछेंगे? कैन यू टेल मी इफ माई पैकेज हैज बिन डिलीवर्ड. जो मैंने पैकेज भेजा था क्या वो मिल गया या अभी नहीं मिला? प्लीज कैन यू टेल मी. तो पोस्ट ऑफिस से आप जाके पूछ सकते हैं. दे विल टेल यू कि मिला है या नहीं मिला है. तो ऑल दीज सेंटेंसेस इन दिस वे योर कन्वर्सेशन विल बी very easy, very simple and very effective. So whenever you have to talk in English in the post office for some work, you can use these phrases, these small sentences. अगर आपको अच्छा लगा हो मेरा वीडियो, please like, subscribe and share this
video so that all others who are not able to see this video at this time, they can also learn these sentences. This will also help you इन स्पीकिंग इंग्लिश, क्योंकि हम स्पीकिंग ही सीखते हैं, इंग्लिश बोलना सीखते हैं, तो ये स्मॉल सेंटेंसेस स्टिल यू कैन लर्न ऑल्सो, यू कैन स्पीक इन फ्रंट ऑफ मिरर ऑल्सो, यू कैन प्रैक्टिस दिस सेंटेंसेस एट सो मेनी प्लेसेस, यू कैन यूज दिस सेंटेंसेस बाय चेंजिंग वर्ड हेयर एंड देयर. सो प्लीज गो थ्रू दिस सेंटेंसेस केयरफुली, एंड अगर अच्छा लगे तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, और फिर मिलते हैं. सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, हमें भी अच्छा लगे कि आपको वीडियो अच्छा लगा है कि नहीं लगा. फिर मिलते हैं. टिल देन बी हैप्पी, बी हेल्दी, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए. बाय बाय.